Good morning everyone. I hope you all are fit and fine at your home. Yesterday we have started the sexual reproduction of lesson number 8, how do organisms reproduce. We have read what the sexual reproduction is. Sexual reproduction is where two individuals are required for the process of fertilization, that is one male and one female. We require two parents. So today we will going to study the sexual reproduction in flowers, in plants, how the sexual reproduction takes place in plants. In plants, flowers are the main reproductive organ. Means both the male and the female gametes are present in the flowers only. So before starting the process, before starting the sexual reproduction in flowers, let's study the basic structure of a flower. Means what are the parts that are there in the flower. So basically this is a typical flower. This is a flower of China rose, that is hibiscus. Now the parts that are in the flowers are made. These are the petals. Petals are the कलर्ड पार्ट्स. जो कलर्ड फ्लावर्स की जो लीव्स होती हैं, कलरफुल लीव्स होती हैं, रेड कलर के जो फ्लावर होते हैं या सनफ्लावर की जो येलो कलर की होती हैं, दोज लीव्स आर कॉल्ड दी पेटल्स ऑफ द फ्लावर. पेटल्स उनको कहते हैं. नाउ दिस ग्रीन लीव्स, यहाँ नीचे के साइड आप देखते हैं फ्लावर में जो ग्रीन कलर की लीव्स होती है, दीज आर दी सेपल्स. ओके, सो द कलरफुल जो लीव्स कलरफुल प्रेजेंट है, फ्लावर को जो कलर प्रोवाइड, जिनसे फ्लावर का कलर होता है, दोज आर दी पेटल्स. एंड द लीव्स दैट आर बिलो द फ्लावर विच आर ऑफ ग्रीन कलर, दीज आर दी पेटल्स. And this swollen part at the base of the flower which holds all the other parts of the flower, this is known as the receptacle. This is known as this swollen part which contains all the parts of the flowers, जो hold करके रखता है flower को. This is the receptacle. Okay. Now as I have told that male and female parts are present in the flower only. So what happens is this the middle structure, ये जो बीच का part है flower का, this is the female part. And ये जो side में आप देख रहे हैं ये दो structure, ये होते हैं आपके male part. एक फ्लावर में एक फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट एक ही होता है, विच इज सराउंडेड बाय द मैनी मेल पार्ट्स. बहुत सारे मेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर में, पर जो फीमेल पार्ट है वो एक ही होता है. दिस फीमेल पार्ट इज नोन एज द पिस्टिल और कार्पल. फीमेल पार्ट है जो फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको पिस्टिल और कार्पल कहते हैं. And the male part of the flower is called the stamen. Stamen is the male part and pistil and carpel is the female part. Now this pistil and carpel is made up of three parts. Pistil और carpel के three parts होते हैं. As you can see here, the upper part is known as the stigma. This tube-like structure, stigma extends to the tube-like structure which is known as the style. ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप बीच में, दिस इज द स्टाइल. एंड एट द बॉटम दिस इज द सोलन पार्ट विच कंटेन्स द ओव्यूल्स. ओव्यूल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, जो सीड में कन्वर्ट होते हैं, दिस इज द ओवरी. सो pistil, which is the female part, consists of the three parts which is the stigma, style and ovary. Now coming to the male part, male part is consisting of two further parts, that is the anther. The upper part is known as the anther and here this tube like structure, this pipe like structure is known as the filament. तो जो मेल पार्ट है वो दो पार्ट से मिलके बना है, एंथर और फिलामेंट से. और जो फीमेल पार्ट है पिस्टिल या फिर कार्पल, दोनों ही नाम है, पिस्टिल भी बोलते हैं कार्पल भी बोलते हैं, वो तीन पार्ट से मिलके बना है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. अब ये जो मेल पार्ट है या बेसिकली जो एंथर है, यहाँ पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं. These pollen grains produces the male gametes. Pollen grains कहाँ present है? Stamen के एंथर में.
एंथर है जो ये अपर पार्ट है स्टेमन का, इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। और ये जो फीमेल पार्ट है ये ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल्स जो हैं, ये ओव्यूल्स जो है जो फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं वो ओवरी प्रोड्यूस करती है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। आई होप इट इज क्लियर। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन डिटेल लेटर ऑन। जनरली आई एम टेलिंग फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट, then fertilization occurs and the formation of zygote takes place which develops into a seed. फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, मेल गैमीट जो मेल पार्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फ्यूज करता है फीमेल गैमेट से और फिर फर्टिलाइजेशन होती है जिससे कि जाइगोट फॉर्म होता है और फिर वो जाइगोट डेवलप होता है सीड में। नाउ हाउ, अब जब फ्यूजन होगा तो फ्यूजन के लिए जो मेल पार्ट है मीन्स पोलन ग्रेन्स जो मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस कर रहा है, इन पोलन ग्रेन्स को इधर फीमेल पार्ट में आना जरूरी है। स्टिग्मा, स्टिग्मा ये स्टिकी पार्ट होता है सो दैट द पोलन ग्रेन्स गेट अटैच्ड टू इट। तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। दिस वी विल गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। ओके, now we have seen the structure of a flower. Now let's study about the types of flower. Types, there are two types of flower. One is unisexual flower and other one is bisexual flower. Now as the name suggests, what does the uni means? Uni means one and bi means two. So unisexual flowers are those flowers which contains only one part, either male or female part in a flower. Unisexual flower are those flowers in which either male or female reproductive part is present. Example, papaya and watermelon. Papaya and watermelon flowers are the unisexual flowers. जिन फ्लावर्स में सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, या मेल या फिर फीमेल, कोई भी हो सकता है, या तो मेल हो सकता है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल हो सकता है, पर होता एक ही है, तो those flowers are known as unisexual flowers. And bisexual flowers are those flowers which contain both the male and female part in a single flower. एक ही फ्लावर में अगर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, मेल भी प्रेजेंट है एंड फीमेल भी प्रेजेंट है, देन दैट फ्लावर इज नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। लाइक चाइना रोज, हिबिस्कस, द डायग्राम दैट आई हैव ड्रॉन, जो हमने डायग्राम स्टडी करा है उसमें दोनों ही पार्ट थे, मेल पार्ट भी था और फीमेल पार्ट भी था, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर। See here, bisexual flower, both male and female reproductive parts are present. Example, hibiscus. Hibiscus का डायग्राम समझाया था ना मैंने स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर में, एंड मस्टर्ड. These are the bisexual flowers. So दो तरीके के फ्लावर्स हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल जिसमें एक रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, मेल या फिर फीमेल, दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो सकता है. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विच कंटेन बोथ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, दोनों ही प्रेजेंट है, मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट है सिंगल फ्लावर में. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन में क्या होता है? नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट for the fertilization to occur, the male sex cells are it is necessary for the male sex cells to come in contact with the female sex cells. जो मैंने डायग्राम बनाया था, जिस आपको फ्लावर का एक्सप्लेन किया था, उसमें मेल पार्ट थे, जो बीच में फीमेल पार्ट था और दोनों साइड मेल पार्ट थे. एंथर था ऊपर, जो एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. तो पोलन ग्रेन्स का बेसिकली जो फीमेल पार्ट का स्टिग्मा, ऊपर का जो स्टिकी पार्ट है पोलन ग्रेन्स का, एंथर में से स्टिग्मा में आना नेसेसरी है, तभी फर्टिलाइजेशन होगी. तो इस प्रोसेस को, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमन to the stigma of the pistil or carpel is known as pollination. तो क्या pollination क्या होता है? Pollination just
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स है, इट इज अ सिंपल प्रोसेस, सिंपल नहीं है, इट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में, सो दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ताकि फर्टिलाइजेशन हो. सी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, इट इज नोन एज पॉलिनेशन. अब ये जो ट्रांसफर है, जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा में, ये कैसे होते हैं? बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स, विंड्स, वाटर, बर्ड्स. इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, विंड्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहे हैं, बर्ड्स या वाटर के थ्रू. कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं? इंसेक्ट्स, आपने देखा होगा जो इंसेक्ट्स हैं वो फ्लावर पे आके उनका नेक्टर सक करते हैं, दे सक दी नेक्टर. तो जब वो फ्लावर पे बैठते हैं तो जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स स्टिक टू देयर लेग्स, उनके जो लेग्स हैं उन पे स्टिक हो जाते हैं, इंसेक्ट्स पे स्टिक. एंड जब वो इंसेक्ट दूसरे किसी फ्लावर पे जाके बैठता है तो वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर करता है. जिस फ्लावर पे वो पहले बैठा था तो वो पोलन ग्रेन्स जो स्टिक हुए उसकी बॉडी में, जब वो दूसरे फ्लावर पे गया तो वहां पर वो पोलन ग्रेन्स उसने ड्रॉप कर दिए दूसरे फ्लावर में. तो अगर वो स्टिग्मा में आ जाते हैं, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. तो इंसेक्ट इस तरीके से करता है. सिमिलरली विंड और वाटर, जब बहुत तेज विंड ब्लो करती है तब पोलन ग्रेन्स आर वेरी लाइट वेट, बहुत ही हल्के होते हैं वेट में. तो पोलन ग्रेन्स जो है हवा से ट्रांसफर हो सकते हैं, हवा से उड़ के मेल एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो सकते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके. So the agents of pollination are, by which the pollination are insects, wind, water and birds. Now pollination is of two types. Two types की होती है pollination. First is cross pollination and other one is self pollination. Now please understand the difference between the two. दोनों में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझेंगे. अभी हमने पढ़ा pollination क्या है, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में. अब बहुत सारे फ्लावर होते हैं, कई फ्लावर्स, एक ही प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं और ऐसे अलग अलग प्लांट होते हैं फ्लावर्स के. नाउ इफ द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड एक ही फ्लावर के, मैंने बताया जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट है. तो अगर सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, मीन्स जो सिमिलर सेम फ्लावर का पार्ट मेल पार्ट है उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में ट्रांसफर हो रहा है, या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, तो जो पॉलिनेशन होती है वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है. मीन्स सेल्फ मीन्स जो एक ही प्लांट है. अब ऐसा तो नहीं है कि एक प्लांट में सिर्फ एक ही फ्लावर ब्लूम करता है. देयर आर मेनी फ्लावर्स ऑन अ सिंगल प्लांट. एक ही प्लांट में, एक रोज के प्लांट में बहुत सारे रोजेस ब्लूम करते हैं, ब्लॉसम करते हैं, सिर्फ एक ही रोज नहीं होता है. तो अगर एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में या फिर उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है. और अगर पोलन ग्रेन्स एक प्लांट के फ्लावर में से दूसरे किसी प्लांट के फ्लावर में स्टिक हो रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है. पर वो जो दूसरा प्लांट है वो सिमिलर टाइप का होना चाहिए. सिमिलर टाइप मीन्स अगर पोलन ग्रेन्स किसी पर्टिकुलर फ्लावर के हैं, मान लीजिए सनफ्लावर के हैं, तो वो दूसरा प्लांट भी सनफ्लावर का ही होना चाहिए. ये नहीं पोलन ग्रेन सनफ्लावर के और अगर वो किसी दूसरे फ्लावर में, मैरीगोल्ड के फ्लावर में स्टिक कर जाए तो पॉलिनेशन नहीं होगा. तो डिफरेंस क्लियर है आपको. सी हियर द डेफिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन. व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? Transfer of pollen grains from anther to stigma of same flower or another flower of same plant. मीन्स पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है या एंथर से स्टिग्मा में, या तो सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, या फिर दूसरे सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है. दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन. नेक्स्ट इज क्रॉस पॉलिनेशन. Transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower on another plant. क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा में, दूसरे प्लांट में, सिमिलर टाइप का दूसरे प्लांट में ट्रांसफर है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है.
So this is all about today's video. Next week we will study how the fertilization takes place. एक बार जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में आ गए, फीमेल पार्ट में मेल जो सेक्स सेल्स है वो फीमेल में आके अटैच हो गया फीमेल पार्ट में, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होती है एंड हाउ द सीड्स डेवलप, सीड कैसे डेवलप होता है, वी विल गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. So this is all for today. Thank you and have a very nice weekend.